Shashikala announces decision to withdraw from politics. So जयललिता जी के डेथ के बाद में एक रो स्टार्ट हुआ था कि who will take charge of AIDMK. अब AIDMK में 3-4 लोग निकल के आए थे सामने. One among those was VN Shashikala. But later on she went to jail for some reasons. तो अब when she has come back, it was expected, it was speculated that Shashikala will get back into active politics and will try to fill in the shoes of Miss Jayalalitha. But eventually Shashikala ji ने announce किया है that she is withdrawing from politics. Next point is Covaxin shows 81% efficacy, also works against multiple variants. So अभी तुमने सुना होगा कि अलग-अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अलग-अलग स्ट्रेन्स आ रहे हैं. तो कोवैक्सिन जो है, it has been displaying a good kind of resistance against multiple variants of the virus that are available. Also, the central government, in order to ensure the accessibility to the vaccine, has done away with the timeline of getting the vaccine between 9 a.m. to 5 p.m. Now it can be given anytime, 24/7 कर दिया है इसको. Then antibody levels lift in 14 days. तो एक सेकेंड शॉट लेने के बाद में फिर फर्स्ट शॉट लेने के बाद में इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 14 डेज. तो अगर कोई ऐसा है कि अभी वैक्सीन लगाई, उसके बाद दूसरे बंदे से जाके कह रहा है कि आओ मेरे मुंह पे थूक दो क्योंकि मैं अभी वैक्सीन लगवा के आया हूँ, नाउ आई विल नॉट गेट कोरोना वायरस, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन स्टिल गेट कोविड. इट टेक्स some time for vaccine to start working in body. Then US think tank report classifies India as partly free. The report has been created by Freedom House. Previously, India's score was 71 out of 100, which has fallen down to 67 out of 100. And that is where India's, क्या कह सकते हो आप, रैंकिंग हैज फॉलन. ऑल्सो इंडिया को उन्होंने पार्टली फ्री वाले डोमेन में पुट कर दिया है. ऐसा कहा जाता है कि करंट गवर्नमेंट इज वेरी intolerable towards anything that is stated against the government. And in that regard only is the very next news that is about Supreme Court giving an explanation. Supreme Court में Justice Sanjay Kishan Kaul की bench ने इसके कॉल जो है, it is said that which we find so offensive as to give a cause of action for a court to initiate proceedings, that is the only thing which could be termed as sedition. Can somebody tell me IPC का कौन सा सेक्शन है जो सेडिशन से डील करता है? Somebody? 124A. 124A. Correct. Absolutely right. 124A was created in British time. British time में से create किया गया था ताकि कोई भी बंदा सरकार के खिलाफ ना बोले. And understand that it was a foreign government imposed onto us. That is why it was created back then. Now it is being continued in the name of national security. Although the situation is not so ripe that we can completely do away with it, but I believe that it is important that we do not completely stick to this one only कि हर चीज पे सेडिशन लगाएंगे, छोटी छोटी बात पे लगाएंगे. इट शुड ओनली बी प्रिजर्व्ड फॉर दोज केसेस जहां पे बहुत सीवियरली एंड बहुत सीरियसली किसी ने देश की इंटेग्रिटी को रप्चर करने की कोशिश करी हो या किसी ने कम्युनल हार्मनी खराब करने की कोशिश करी हो. ओनली इन दोज केसेस मस्ट सेडिशन बी इम्पोज्ड. ऐसे सेडिशन फर्जी इम्पोज नहीं होना चाहिए हर किसी पे. उसके बाद ये सब बढ़ता जाएगा. यहाँ पे बस केसेस हैं परजीवी कि किसी के ऊपर कोई मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा है, कहीं कांग्रेस बोल रही है कि लोगों का हमें भरोसा बढ़ गया, कहीं आम आदमी पार्टी है. डोंट नीड टू रीड दोज न्यूज. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज मुजफ्फरपुर शेल्टर केस. कैन समबडी गिव मी अ समरी ऑफ कि क्या हुआ था? किसी को याद है ये केस? नो आइडिया. सो मुजफ्फरपुर बिहार में. हाँ बोलो. नहीं याद है. सो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ क्या? अ कपल ऑफ years back, Tata Institute of Social Sciences went there for conducting a study onto the condition of women. जब TISS वाले रिसर्च कर रहे थे तो they started probing the girls, and during the probing they came to know that इसका जो ओनर था ब्रजेश ठाकुर, he was not just molesting girls, he was even selling them off. कई बार पेमेंट लेके लड़कियों को भेजता भी था.
दूसरी जगह जहाँ लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था, बेसिकली ही हैज कन्वर्टेड द शेल्टर होम इनटू मोर ऑफ अ ब्रोथल, ठीक है, एंड दैट टू अ ब्रोथल व्हिच वाज इंक्लूडेड इन इन्वॉल्वड इन लेट्स से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस टाइप का बना दिया था बिल्कुल। इनिशियली कई बड़े लोगों का भी उसमें हाथ मिला था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था बिहार की खुद की एक मिनिस्टर का, एंड शी हैड रिजाइंड देयर आफ्टर अबाउट इट, ठीक है, मल्टीपल चीजें चली थी, बट एंड ऑफ द डे यहाँ पे बहुत ज्यादा रकस क्रिएट हुआ था। तो अब उसी में इंक्वायरी चल रही थी, तो ईडी ने पता किया कि भाई अलग अलग जगह से ये बंदा डोनेशन भी ले रहा था। जब डोनेशन के पैसे का गलत यूज किया है तो जाहिर सी बात है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड possessing this और अटैचिंग दिस अक्यूज्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे ब्रिजेश ठाकुर की प्रॉपर्टी को अटैच करना स्टार्ट कर दिया है। सो दैट इज व्हाई ईडी हैज कम इनटू पिक्चर। ईडी इज नॉट कमिंग आफ्टर देम बिकॉज दे वर इन्वॉल्व्ड इन some let's say they converted their shelter home to a prostitution house or something like that, इस टाइप का करके ऐसे वजह से पीछे नहीं पड़ा है। There has been misappropriation of government funds, there has been misappropriation of public donations, that is why ED is jumping into it, ठीक है। तो ईडी केवल तभी आता है जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करी हो किसी ने। अगला पॉइंट है फ्री एजुकेशन सेंटर टोल्ड टू रिप्लाई ऑन कंटेम्प्ट पिटीशन। So private schools throwing out many EWS students every year after 8। क्या है कि आरटीई जो है राइट टू एजुकेशन, इसके अंदर 8वीं तक अप्रोक्सीमेटली फ्री एजुकेशन मिलती है बच्चों को। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले एक स्टेटमेंट दिया था, एक वर्डिक्ट दिया था 2019 में, जिसमें इसने बोला था कि जो एक्सटेंशन है ईडब्ल्यूएस का शुड बी ग्रांटेड अप टू 12th, ठीक है, 8वीं से भी आगे मिलना चाहिए अप टू 12th। बट गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया इस चीज पे। Till date, private schools are able to kick the students out as soon as they are completing their 8th standard। 8वीं पास हुए उसके बाद बेटा निकलो और घर जाओ अपने, क्योंकि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन यहाँ पे। सो कोर्ट के ऑर्डर के डायरेक्टली खिलाफ में है, यहाँ लगेगी इनके ऊपर कंटेम्प्ट की पिटीशन, ठीक है। कंटेम्प्ट में कौन सा लगेगा, सिविल लगेगा या क्रिमिनल लगेगा इनके ऊपर? सिविल। सिविल लगेगा सर। ठीक है, क्रिमिनल कौन से 2 केसेस में लगता है? अगर कोर्ट का बोला हुआ फॉलो नहीं किया तो ये तो कोर्ट का बोला हुआ फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर वो तो क्रिमिनल हुआ। क्रिमिनल जिसके लिए एक्ट बना होता है और पनिशमेंट डिसाइडेड होती है। और थोड़ा आगे बढ़ो। क्रिमिनल तब लगता है जब आप जुडिशरी को अंडरमाइन करते हो या किसी सिटिंग जज को क्रिटिसाइज करते हो, उनको स्कैंडलाइज करते हो, ठीक है। जब आप जुडिशरी को अंडरमाइन करोगे, जजेस को जो है स्कैंडलाइज करोगे, उस केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा केवल। या फिर आप ऑब्स्ट्रक्ट कर दो जस्टिस को, ठीक है, आप रोड़ा बन के खड़े हो जा राह में न्याय की, और आप कोर्ट को प्रोसीडिंग्स ना कंप्लीट करने दे रहे हो अपनी, कि हम तो धरना दे देंगे कोर्ट के बाहर बैठ के, इस टाइप की हरकत कर दो। इन दैट केस क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज पुट। सिर्फ डिसोबीडियंस के केस में सिविल कंटेम्प्ट इशू होता है यहाँ पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, सर। I have a doubt, sir. हाँ बोलो। देखो मिस्टर प्रकाश भूषण के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज चला था। हम्म। क्रिमिनल था या फिर सिविल था, वही कंफर्म कर रहा हूँ। उनके ऊपर क्रिमिनल था, स्कैंडलाइज करा था उन्होंने जुडिशरी को, Alright, sir. ठीक है। Yes, ओके, sir. ठीक है, और तो यहाँ कुछ है नहीं। लद्दाख में एग्जीबिशन इनॉग्रेट हुआ। देन सिमलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उड़ीसा सर। आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, ठीक है। लोकेशन एक बार चेक कर लेना, आगे पीछे कौन सी नदी है, कौन सा दूसरा पार्क है, वो चेक कर लेना, बिकॉज ऑफन इट इज आस्क्ड। नेक्स्ट इज दिस, जहां पे रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स, ट्रैवल बॉडी आस्क्स लाल गवर्नमेंट फॉर रीलुक एट लेजिस्लेशन। जो सीआई है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑन वेडनेसडे इट अर्ज्ड द हरियाणा गवर्नमेंट टू रीलुक एट द लेजिस्लेशन that provides for reservation in private jobs for local candidates, saying reservation impacts productivity and competitiveness। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड दैट सीआईआई ने एक स्टेटमेंट क्यों दिया है। इन्होंने ये बोला कि सर आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दैट इज फाइन, बट गिविंग रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब्स इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल।
ठीक है, बिकॉज इससे प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों हैम्पर होंगे। ठीक है, यहाँ पे यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। देखो, रिजर्वेशन पर से इज नॉट बैड। जब आप रिजर्वेशन एक्सटेंड करते हो किसी को भी, इट इज नॉट बैड। बट when reservation becomes a political agenda, when reservation becomes somebody's vote bank politics का part, then it is really bad। कैसे? अगर आप मेरिट्स पे डिसाइड करो कि कैसे रिजर्वेशन दिया जाना है, कहाँ रिजर्वेशन दिया जाना है, तब ठीक है। लेकिन जब आप मेरिट्स को इग्नोर करके रिजर्वेशन बांट देते हो, तो इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, एंड एक और चीज है कुछ हद तक विच इज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, दैट रिजर्वेशन इज जनरली ग्रांटेड ओनली व्हेन इलेक्शंस आर नियर। कभी भी नोटिस करना ये चीज, किसी भी टाइप का रिजर्वेशन ग्रांट किया गया, हमेशा तभी ग्रांट किया गया जब इलेक्शंस वर नियर। ठीक है, सम स्टेट्स आर देयर, जैसे अब लोग कहते हैं कि बीजेपी इज द ओनली वन दैट हैज डन इट, बट कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने भी कई बार काम कर रखे हैं अच्छे। जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर ये विल गो 73%, 76% तक रिजर्वेशन दे रहे हैं वो लोग। अगर 76% आपने रिजर्वेशन दे दिया, तो आउट ऑफ 100 जनरल स्टूडेंट्स केवल 24 को पोजीशन मिलेगी वहां पे कोई भी। दैट अगेन गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड मेरिट ओरिएंटेड नेचर। आप एक जो स्टैंडर्ड डिफाइंड है वहां तक दे सकते हो। तो इसी वजह से दैट इज वेयर वी से दैट रिजर्वेशन मस्ट बी रिफॉर्म्ड इन द कंट्री। होना चाहिए, पर रिफॉर्म जरूर होना चाहिए। प्लस एक और चीज है, राइट नाउ इफ यू मस्ट सी, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया रिजर्व्ड कम्युनिटीज का भी। ओबीसी तो चलो ठीक है, अच्छा डेवलप कर गए, बट एससीज एंड एसटीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिकॉज इट इज द सेम हाउस होल्ड्स दैट हैव बीन रिपीटेडली एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। So the time has really come when we should think about whether we have to start implementing the status of creamy layer and non-creamy layer. And I believe that the creamy layer and non-creamy layer discrimination will only further this problem of reservation। ठीक है, creamy layer non-creamy layer से इससे अच्छा है what we can do is, as soon as somebody is able to cross that one particular income barrier, let's put them in general category। आप किसी से क्यों कहते हो कि तुम एससी हो? इंस्टेड सिंपल बोलो, जैसे ही उसने एक इनकम क्रॉस करी, इनकम लेवल, वी कैन कॉल देम एज जनरल। कम्युनिटी का पार्ट बदल दो उन्हें, बोल दो कि दे आर फ्रॉम जनरल कम्युनिटी नाउ। ठीक है, एंड द पर्सन आल्सो हैज टू सबमिट एन अंडरटेकिंग स्टेटिंग दैट देयर इनकम इज राइजन एंड दे वांट टू मूव टू द जनरल कम्युनिटी एंड लाइक दैट। अब वो तो फिर लोगों के ऊपर ही रह जाएगा ना टोटल, कि कैसे वो अपने आप को चेंज करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट माय सॉल्यूशन इज परफेक्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी कैन हैव अ रिफॉर्मेशन ऑन दिस लाइन। सबसे पहले तो ये बैन होना चाहिए कि जैसे इलेक्शंस आते हैं देन रिजर्वेशन इज अनाउंस्ड। सो व्हाई नॉट पुट अ पर्टिकुलर बैन कि जैसे इलेक्शंस जिस भी जगह पे होने होंगे, उस एरिया में +-1 ईयर में कोई रिजर्वेशन अनाउंस नहीं किया जा सकता, बिकॉज रिजर्वेशन नॉट जस्ट क्रिएट्स कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स बट इट ऑल्सो हैम्पर्स इलेक्शंस। तो दोनों चीजें हो जाती है वहां पे, राइट? तो एक तो ये फंडा हो सकता है, इट इज जस्ट वन पॉसिबिलिटी दैट आई एम स्टेटिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। हो सकता है इसमें हजार गलतियां हो, हजार कमियां हो। आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, आई हैव जस्ट सेड दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मिंग इट। ठीक है, सो ये एक चीज हो सकती है। अब इस टॉपिक पे ज्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देन डिस्ट्रेस सेल ऑफ नेशनल एसेट्स इज अनवाइज। सोनिया गांधी जी का मत पढ़ना, कतई मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर मार देना। डिस्पाइट आर्बिट्रेशन टग ऑफ वॉर म्यूचुअल सेटलमेंट इज की। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसमें, क्योंकि कायन वाला जो केस चल रहा है उसके ऊपर बात हुई है इसमें, बट अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो यू कैन इग्नोर दैट ऑल्सो। देन ऑटो ड्राइवर अरेस्टेड इन केरला फॉर मोरल पुलिसिंग। ये उत्तर प्रदेश से लग रहा है इंस्पायर हो गया था गलती से लड़का। हुआ क्या, ये ऑटो वाला जा रहा था, रास्ते में इसने देखा एक 10वीं क्लास का लड़का एक लड़की के साथ टहलते हुए जा रहा है। इसने थप्पड़ी थप्पड़ मारे उसके, ही स्लैप्ड हिम मेनी टाइम्स एंड ट्राइड टू मोरली पुलिस द गाय, बट लेटर ऑन एंडेड अप बीइंग इन द जेल हिमसेल्फ। ठीक है, खुद ही अरेस्ट हो गया, क्योंकि केरला स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, KSCPR, उसने उठा लिया इनको और जेल में डाल दिया है। तो अब प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में ज्यादा हो गई, अब इनको मोरल पुलिसिंग मिलेगी। नेक्स्ट इज फील्ड ट्रायल्स फॉर सेंसस एंड एनपीआर टू बिगिन सून। सेंसस और एनपीआर के जो फील्ड ट्रायल्स अब स्टार्ट होंगे, इसके अंदर मोबाइल ऐप बेस्ड पहली बार सेंसस कंडक्ट होगा। तो जैसे ये इमेज दिया हुआ है 2011 सेंसस का है, ऐसे ही होता था कि वो लोग अपना बस्ता लेके आते थे, बैठ के सबसे सवाल पूछते थे एंड दे यूज्ड टू मेक एंट्रीज इनटू द रजिस्टर। देन उस पूरे रजिस्ट्री को सोचो डिजिटाइज किया जाना,
एंड वंस इट हैज बीन कंप्लीटली डिजिटाइज्ड देन उसमें से कौन से डेटा को किस तरह डालना है वो सब चीजें सेट करनी है, तो एरर का मार्जिन बहुत था. Now that we will be conducting the census with the help of some digital devices, it will be more or less real time. तो जो पहले तुमने देखा होगा ना 2011 का आधे से ज्यादा डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. It takes approximately 3 years for them to process the data and come out with preliminary analysis. This time that also wouldn't be the case. जल्दी आ जाएगा वो डेटा. अगला पॉइंट है 14 ट्रोजन्स फाउंड इन द सर्विस. ना ट्रोजन क्या है, बहुत पुरानी बात है. अब एम्पायर्स के नाम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, सो आई विल नॉट टेक देम. व्हाट हैपेंड, टू एम्पायर्स वर क्लैशिंग विद ईच अदर. अब एक एम्पायर ने दूसरे एम्पायर को ट्रिब्यूट के तौर पे बहुत बड़ा घोड़ा भेजा, वुडन हॉर्स, और उस वुडन हॉर्स के अंदर सिपाही छुपे हुए थे. जैसे ही ये घोड़ा फोर्ट के अंदर घुसा, वो सिपाहियों ने निकल के तबाही मचानी शुरू कर दी थी. तब से यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स वाली जो प्रथा थी, जो ट्रोजन नाम है वो आ गया वायरसेस के लिए. वायरस एंटर्स, लुक सामने से इट विल लुक लाइक अ नॉर्मल रूटीन सॉफ्टवेयर, बट एज सुन एज इट एंटर्स योर सिस्टम इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग डैमेज. ठीक है, दैट इज अ ट्रोजन. तो कंप्यूटर के बाहर अगर तुम देखोगे उसे तो इट इज अ नॉर्मल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, बट वंस इट गेट्स इनटू अ सिस्टम, हिडन तरीके से ये साबोटाज करना शुरू कर देता है आपके सिस्टम को. तो महाराष्ट्र के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके electronic systems में approximately 14 Trojan horse viruses were found, and this shows that how secure our cyber systems are. कि किसी ने दूर से हैक करके पूरे पूरे ग्रिड को डाउन कर दिया कि अक्टूबर 12 के अराउंड जो पावर कट हुआ था मुंबई में, दैट हैपेंड. ठीक है, दिस शोज दैट आवर सिस्टम्स आर वेरी वल्नरेबल. These systems are called as CII or critically important infrastructure. ठीक है, critically important infrastructure. इन्हीं को हैंडल करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, कौन बताएगा कि क्या टीम हमने क्रिएट करी है फॉर हैंडलिंग एनी अटैक्स ऑन टू इंडियन सर्वर्स और एनीथिंग? सर्ट इंडिया टीम का नाम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, सर्ट इंडिया. So that is the team which has been created for tackling the attacks and everything. Now next news is about sugar mill. Now sugar के prices को government ने fix कर रखा है. So now these sugar mills are demanding that the price of sugar must be increased from 31 to 34 rupees so that they can clear the areas of farmers which are pending. अब since I belong to the area जहाँ पे ये problem होता है sugar cane का, honestly let me tell you what happens. आप sugar mill में जाते हो, sugar cane लेके वहां दे के चले आते हो, उसके बाद में कई बार 2 साल 1.5 साल बाद ऐसे आपका पेमेंट आता है. सो इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो 2 साल अपने दम पे चल लें अलग से पैसे ला ला के. ठीक है, एंड येट दी शुगर मिल्स हैव बीन डूइंग दैट रिपीटेडली, एंड माइंड यू इट इज हैपनिंग रिपीटेडली. आई थिंक फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस. मतलब बहुत छोटा था मैं उस जमाने में, चुन्नू पुन्नू टाइप्स, तब से मैं इसे नोटिस कर रहा हूँ और ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुई. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा हमेशा यही होता है कि गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है. एवरी फार्मर इज सफरिंग दिस प्रॉब्लम. ठीक है, सो दैट इज वेयर द सिचुएशन इज. नेक्स्ट इज यूके पार्लियामेंट टू डिस्कस फार्म लॉज ऑन March 8. जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस वन. अगला पॉइंट है यहाँ पे, वैक्सीन कैन बी टेकन 24/7 सेज सेंटर. ठीक है, तो अब टाइमिंग जो थी वो हटा दी गई है, एज आई हैव टोल्ड यू. Can somebody identify this person who's giving the vaccine to President Ramnath Kovind? Can somebody tell me which branch of the military she belongs to? आर्मी मेडिकल कोर. नहीं, MNS, correct. Military Nursing Services. ठीक है, she's a military nurse. Most likely she must be a lieutenant colonel. इनकी रैंक्स बहुत तेजी से बढ़ती हैं. Just a second, it got stuck. Do you know why was the MNS granted ranks? And why do we call sister to nurses? Any idea? No, sir. कभी सोचने की कोशिश नहीं करी कि सारी नर्सेस सिस्टर क्यों होती हैं? Because they take care of us. नहीं, बताऊंगा तो थोड़ी हंसी आएगी, बट सोचना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी की. यू नो, वॉर एफर्ट्स के टाइम पे वर्ल्ड वॉर्स में एंड एवरीवेयर
nurses used to be deployed in the front line क्योंकि injured Yes, sir. soldiers आते थे, तुरंत nursing चाहिए होती थी, care चाहिए होती थी उन्हें, so nurses used to be deployed. ठीक है. And when there were these girls between so many men who were outside, who were away from their families and everything for so long, sexual attacks इनके ऊपर बहुत होने लगे, rapes and everything started. That is where somebody came out with an idea and said that let's call these people, let's call these nurses as sister. Once you call them sister, you really cannot go ahead and sexually exploit a girl. ठीक है, unless you are a sicko, a big time sicko. Any which ways, if you're sexually exploiting someone, you are a big time sicko, but still it is not considered a right thing when when you try to molest or when you try to sexually exploit somebody you call as your sister. That is where sister term came, and still this problem was not resolved. पहले थोड़ी तो कम हुई, it led to certain drop, but it was not completely resolved. So later on what they did was they created military nursing system services in which these girls also got ranks. नाउ अब तुम तो वहां पे ट्रीटमेंट करा रहे हो, यू डोंट हैव अ रैंक, या फिर है तो तुम्हारी लेफ्टिनेंट कैप्टन इस टाइप की कोई रैंक है. वहां जो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही है शी इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल. आई मीन आई वाज अ डैम कैडेट एंड मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे द नर्स दैट वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, हर रैंक वाज लेफ्टिनेंट कर्नल एंड शी वाज कमीशन्ड अ फ्यू इयर्स बैक ओनली. तो अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, दिस इज द सेम लॉजिक दैट दे आर अप्लाइंग. अब समझ में आया व्हाई इज एमएनएस गेटिंग रैंक्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. फिर यहाँ पे हिंदू अपनी खुद की तारीफें छाप रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर एक्सेट्रा. वही बात है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, खुद के ही में खुद का छापे जा रहे हैं, खुशी 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 खुशी. खैर, इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्स पार्ट इन श्रीलंकन इवेंट, इट मार्क्ड SLA's 70th anniversary. So Indian Air Force के 23 aircrafts have participated in the anniversary of the Sri Lankan Air Force. ठीक है, it is only showing that Sri Lankan and Indian ties are very good, अच्छी हैं. अब कहोगे सर एक तरफ ECT वाली सिचुएशन चल रही है, एक तरफ चाइना को वो ये लोग टेंडर दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स को पार्टिसिपेट करा रहे हैं. करना क्या चाहते हैं? Everybody is enjoying from the and benefiting from the rivalry that is there between India and China. ठीक है, तो श्रीलंका is no exception to that. अगला पॉइंट है इंडिया 17 कंट्रीज फेस यूएस एंटी डंपिंग टैक्स दे गेन फ्रॉम एल्यूमिनियम सब्सिडीज. सो इंडिया में क्या है, फॉर प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम यू गेट अ लॉट ऑफ सब्सिडीज. यूएसए हैज रियलाइज्ड दैट एंड इसी से उसे समझ में आया कि एक्सपोर्ट जो है काफी सब्सिडाइज्ड हो जाता है एल्यूमिनियम का, एंड एक्सपोर्टेड एल्यूमिनियम इज एक्चुअली चीपर compared to the aluminum that is available in Indian domestic market. That is where USA has imposed anti-dumping duty on us. चिंता मत करो, हम अकेले नहीं है, 17 और लोग हमारे साथ डूबे हैं. अगला पॉइंट है सेबी कॉल्स फॉर मैकेनिज्म टू प्रिवेंट मार्केट अब्यूज. नाउ यहाँ पे जितने भी MIIs हैं उन सबको बोला गया है दैट प्लीज कम आउट विद अ कोड ऑफ कंडक्ट सो दैट मार्केट को अब हम लोग ढंग से कंट्रोल कर सकें. ठीक है, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या होता है मार्केट में, फ्रॉड, मार्केट अब्यूज ये सब बहुत हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता. जैसे अब आप लोगों ने सुना होगा ना, फोन पे आपके मैसेज आता होगा. 3-4 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था कि 1 लाख रुपए जमा कराएं, हर महीने 20% ब्याज पाएं. सोचना जरा, 1 लाख रुपए में डिपॉजिट करें, हर महीने 20% का इंटरेस्ट आ रहा है, साल भर का इंटरेस्ट रेट होता है कितना, 240%, 240%. हम लोग तो जो 15-20% का इंटरेस्ट रेट अगर एक्यूमुलेट कर लेते हैं पूरे पोर्टफोलियो पे, खुश हो जाते हैं. हम लोगों को तो कायदे में शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम 15% ला रहे हैं, वो 250% ला रहा है, राइट? तो ये सब खाली फर्जी स्कीम्स होती हैं, वो पैसा कभी वापस नहीं आता. वंस यू गिव दीज पीपल द मनी, दोबारा वो फोन भी नहीं उठाते आपका, कुछ नहीं होता वहां पे. ठीक है, सो डू नॉट फॉल प्रे टू एनी lucrative offer. And trust me, since I have been in the market for very long time, I have realized this one thing: if it is too lucrative, it is always going to be fake, always, with zero exception. If it is too lucrative, it is going to be fake. ठीक है, तो do not try some standards, कुछ नए stunt मत try करना. Then Peaky Blinders win astonish plate. ठीक है, ये भी बढ़िया एक इवेंट हुआ. अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको कंफ्यूज मत करना, पता चला बोल दिया कि सर वो वेब सीरीज आई थी उसको मिल गया, नहीं ऐसा नहीं है कुछ. नेक्स्ट, मोटेरा शोडाउन में जो पिच को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो इंग्लैंड की टीम से कई लोगों ने जो बात कही है वो सही है.
दैट नाच न जाने आंगन टेढ़ा. When you cannot play on a spin pitch, you should not really cry about it. ऐसे तो हम भी वहां जाके बोल सकते हैं कि फास्ट पिच पे तुम लोग अपने हिसाब से खेलते हो ऑल दैट, बट वही बात है, हार गए तो रो रहे हैं. Then there is nothing more. So paper for today is over.